कि आपकी दूसरी मीटिंग चल रही है. What? It was showing the host is in. I mean, it's दूसरी मीटिंग चल रही है. Yeah, why it showed that? पता I नहीं didn't मैम. have anything. मैंने भी मैम मैंने तो 220 से मैंने ज्वाइन किया हुआ सेम लिंक. मैं अकेली थी इसमें, कोई था ही नहीं. 220 से ज्वाइन हो रहा था. नो हम नहीं कर पा रहे थे ज्वाइन. नहीं, जो मैम ने आज लिंक भेजा है, जो मून मेडिटेशन के साथ वाला, न्यू मून मेडिटेशन, वो वाला लिंक ज्वाइन किया आपने? नहीं, डिस्क्रिप्शन का जो मैम ने डाल रखा है ना, आई जॉइन फ्रॉम दैट ओनली. अभी वो बस मैंने मैसेज डाला ग्रुप में एंड आई वाज लाइक लेट मी रीट्राई अगेन एंड नाउ आई जस्ट जॉइंड इन इट. मैंने भी डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन किया और मैं 220 से मैं अकेली थी ग्रुप में. मुझे लगा शायद मैं जल्दी आ गई. आई एम ट्राइंग फ्रॉम 225. क्या बात है, आज कहीं मैं लेट ना हो जाऊं. तो मुझे लगा कहीं 3:30 से नहीं है, तो मैं बार बार मैसेज ही पढ़ रही थी कि नहीं, पहले हमारी प्रैक्टिसेस होंगी रेगुलर, फिर मेडिटेशन होगा. हाँ, नहीं हमारी प्रैक्टिसेस है. So let me start live and let's start our peak state programming. Okay, so let's start our peak state programming. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना ग्रुप में? किसी ने कुछ लिखा है क्या? मैम दैट्स इट, जस्ट चेकिंग मैम कि अभी ज्वाइन हो पा रहे हैं तो जिन का नहीं हुआ है. हाँ यस, अश्विनी जी ने डाल दिया कि आप आ गए हो. ओके. और दूसरे ग्रुप्स में भी अगर कुछ आपकी जो ग्रुप्स में हो उसमें भी डाल देना कि स्टार्ट हो चुका है करके. यस मैम. Same ओके, लेट्स स्टार्ट. position. Just move your hands faster and faster. लेट्स स्टार्ट. So let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster, run faster. Run Yes, faster, run fast. faster. Faster. Yes, fast. Come on, faster. Come on, faster. Yes. Come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Keep running. Fast. Yes, come on. Fast. Still faster. Yes, faster. Come on. Go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. Yes, Very nice. I'm the winner. And you say You to yourself, all are the winners. I am the winner. I'm the winner. Yes, thank you. Yes. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised सब behind. अपने अपने वीडियोस Same ऑन thing कीजिए. again. Okay, so let's start. 3, Let's start. 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come Yes, on, fast. videos don't teach you Yes, stuff. come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Yes, Run faster. fast. Still faster. You Yes. can do it. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come I'm on, the winner. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Stop. Yes, Thank I'm the you. winner. And Yes, now, we all are the say to winners. yourself, yes, I'm the winner. Let's declare Yes, to the I'm the universe, winner. I'm the I winner. am the winner. I'm the winner. And now we say to ourselves, I Let's do can. this stretching repeat, exercise to I can. activate our spine. I will. I must. I can. I will. I must. I Thank you. can, I Thank you. will, I Thank you must. so much. Let's do all of these stretching exercise to activate our spine. And let's start.
तो अपने जो भी सपने हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इन मे बी रिसेंट फ्यूचर, जो शॉर्ट टर्म गोल्स है ऐसे कुछ, सो लेट्स अगेन spread our hands in the universe, towards the universe, and let's declare to the universe के वो पूरा हो चुका है। उसके लिए आप बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हो और बहुत ही grateful हो। So I will also mute myself and you all declare to the universe. Now let's do our mirror work. Mirror work करते हैं। तो जो भी अगर कोई नए लोग आए हैं तो ये से हम लोग रोज एक मिरर रखते हैं अपने पास और मिरर के साथ एफर्मेशंस करते हैं। सो लेट्स डू इट। I love you, Alethea. I really, really love you. You are the greatest soul ever born on this planet. I love you and I approve of you. I accept you exactly the way you are and the ways you are not. I love you exactly the way you are and the ways you are not. God has made you in his image and you are whole and complete. You are perfect as you are. You are perfect in every manner. I'm getting better and better in every way, every day. I love you and I approve of you. I respect you. I trust you. I value you. Yes, yeah, I value you. And you are more powerful than you think you are. You are a magnificent being of life. You are love and light. Yes, you are love and light. You are pure consciousness. I am pure consciousness. I love you and I approve of you. There is a perfect wisdom within my heart, and I listen to my intuition every day. I listen to my intuition and I love you. I love you and I approve of you. I am inspired by my inner wisdom every day. I am inspired. I may take inspired action towards my dreams. I'm quickly moving towards my dreams, my dream life, a life where meaning is there, purpose is there. Yes. Today, let me be the channel of love and light. Let me be the channel of love and blessing. Yes. This also declare to the universe, let me be the channel of love and blessing. Let me be the channel of love and blessing. Okay. I'm a money magnet for money and miracles. Money comes to me easily and effortlessly. I attract money easily and effortlessly. Financial freedom is my birthright. I claim it now. Financial freedom is my birthright. I love and trust. I trust the process of life. I am one with the power that created me. I am one with the power that created me. And I trust the universe. Okay, so let's start our gratitude prayer. ब्रीफ में ही करते हैं क्योंकि वैसे भी मेडिटेशन हम करने वाले हैं. But yeah, let's thank our 5 elements and important things in our life. So let's start. Thank you, universe, for this beautiful, amazing life, which is full of love, joy, peace, harmony,
which is full of bliss, which is full of meaning, prosperity, wealth, abundance, success, perfect and radiant health. Yes, perfect and radiant health. Thank you that I'm alive today. Thank you for one more day to be alive. एक और ये नया दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. The gift of health is keeping me alive. ये गिफ्ट जो आपने दिया है हेल्थ का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारी लाइफ में कि मेरी बॉडी इतने अच्छे से काम करती है, इतनी ज्यादा मुझे एनर्जी देती है ताकि मैं अपने सपने की तरफ वो एनर्जी से सब कुछ कर पाऊं. इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. आज तक जितने भी पैसे मिले हैं वो सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और आज भी मेरे पास जो पैसे हैं जिससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ, जो चाहे वो खरीद सकती हूँ, एटलीस्ट मेरी नीड्स हमेशा पूरी होती है. जो मुझे चाहिए होता है, जो जिसकी मुझे जरूरत होती है, वो सब चीजें मैं खरीद पाती हूँ. इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल रिलेशंस इन माई लाइफ. जो हारमोनियस रिलेशंस है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मेरी फैमिली, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पार्टिसिपेंट्स, सभी कोई मेरी लाइफ में कोइंसिडेंटली नहीं है. सबका कुछ ना कुछ रीजन है मेरी लाइफ में होने के लिए. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ऑल दिस beautiful relations in my life. Thank you. Thank you for the 5 elements who are my best friends. धरती माता जो मुझे बहुत कुछ देती है, शेल्टर के साथ खाना पीना सब कुछ उन्होंने दिया है. ये रिश्ते, ये सब कुछ, ये पूरा जीवन ये धरती माता की देन है. थैंक यू सो मच मदर अर्थ. थैंक यू फॉर द एयर, मैजिकल एयर दैट वी ब्रीथ. इतना ऑक्सीजन है कि मैं आज जिंदा रह सकती हूँ. ये हवा के अंदर जो ऑक्सीजन मुझे हमेशा मिलता रहता है, जिसके बिना मेरा जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है. वो हवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वो ऑक्सीजन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. फायर एलिमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सूरज की गर्मी, उनकी रोशनी के लिए. मेरे अंदर जो फायर एलिमेंट है, जो मेरे अंदर का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन होता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हर जगह पे जो विदिन है वही विदाउट है. जो ब्रह्मांड बाहर है वही ब्रह्मांड मेरे अंदर भी है. वो ब्रह्मांड की स्पेस के लिए, वो फायर एलिमेंट के लिए, वो पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जो पानी के बिना मेरा जीवन बिल्कुल संभव नहीं है. ये धरती के ऊपर जो 70% वाटर है, उसी तरह मेरी बॉडी के अंदर भी 70% मेरी बॉडी पानी से बनी हुई है. तो मेरा ब्रेन ऑलमोस्ट 80% पानी से बना हुआ है. यानी कि पानी कितना महत्वपूर्ण है मेरी लाइफ में. इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर द स्पेस एलिमेंट, जहाँ पे सब कुछ संभव है. वही स्पेस एलिमेंट जहाँ से सब कुछ क्रिएट हुआ है, वही पावर, जो पावर की हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, वो जो लव की, प्यार की शक्ति जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हमें भी बनाया है, और हमारे हाथ में क्रिएशन के पावर्स दिए हुए हैं, हमारे हाथ में चॉइसेस दी हुई है. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आई एम वन विद द पावर दैट क्रिएटेड मी. थैंक यू. Thank you so much. Okay, so let's start our magic book, power book. Thank you. Okay, so कौन पढ़ना चाहेगा आज? Shall I? Yes, yes, definitely. Sure. Thank you. Thank you for coming up. तो जैसे हमने अपने पॉइंट्स ऑफ पावर कल
फिनिश किए थे और फिर थोड़ा बहुत पढ़ा था इंग्लिश बुक में, तो आज हिंदी में पढ़ते हैं। भावना की फ्रीक्वेंसी, हिंदी में भी वही बोला है, फ्रीक्वेंसी। तो लेट्स स्टार्ट। भावना की फ्रीक्वेंसी यानी ये कोई यदि आप सॉरी वो भावना की फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फीलिंग की फ्रीक्वेंसी है। ओके। कोई लेडी भावना की फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ पे। हाँ, आपकी बहू की फ्रीक्वेंसी नहीं है। ओके। मेरी बहू एकदम यूनिक है, वो एक ही है और कोई नहीं है। यस, डेफिनेटली सबकी बहू यूनिक ही है। यस, हम सब एक्चुअली यूनिक है। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। हाँ, यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। बुरी भावनाओं का मतलब यह है कि आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं कैसी है, अच्छी या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो देखो ये बहुत जरूरी है। कोई बोलता है ना कि मैं ऐसे लोगों को आकर्षित करती हूँ जो मुझे धोखा देते हैं या फिर मुझे मैनिपुलेट करते हैं या मेरी जो भी चीजें करते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं पे आप ऐसी फ्रीक्वेंसी पे होते हो जो इस तरह के लोगों को, इस तरह की परिस्थिति को, इस तरह की घटनाओं को आप आकर्षित करते हो क्योंकि आप वो फ्रीक्वेंसी पे हो। हम सब की एक फ्रीक्वेंसी होती है चुंबकीय, जो मैग्नेट की तरह काम करती है, और जो भी फ्रीक्वेंसी पे हम होते हैं वैसी ही चीजें हमारी तरफ आकर्षित होती है। यानी आज अगर मैं जो भी फ्रीक्वेंसी पे अपनी फीलिंग्स दे रही होंगी, चलो एटलीस्ट आज मैं जो भी सीड डाल रही हूँ वैसी ही परिस्थितियां मेरे पास सामने सामने आती जाएगी। कुछ कुछ होगा जो अभी इसी वक्त वो सारी चीजें मैनिफेस्ट हो रही होगी। कभी कभी मेरे साथ वही होता है कि जस्ट थिंक करती हूँ उसी टाइम पे मैनिफेस्ट होता है। और कभी कभी बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कुछ गलत भी अगर थोड़ी सी भी सोच में आ गया वो मैनिफेस्ट हो जाता है तुरंत ही। सो बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम ऐसी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी इन द फ्रीक्वेंसी where we attract the same kind of people, circumstances and situations in our life. तो और हमें ये देखना है कि मैं अभी इस मोमेंट में कौन सी फीलिंग फ्रीक्वेंसी दे रही हूँ, भेज रही हूँ यूनिवर्स के अंदर। ये आपको हमेशा अपने लिए देखना होगा, अलर्ट होना होगा, बहुत अवेयर होना होगा अपने खुद के लिए। और जो भी हम ड्रीम्स की बात करते हैं, अगर हमें ड्रीम्स चाहिए तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है कि यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। इसलिए हम ग्रेटफुल एंड हैप्पी वाली फीलिंग करके हम यूनिवर्स में डिक्लेयर करते हैं, यानी कि आप महसूस कर रहे हो। तो जब तक आप अपने सपनों की फ्रीक्वेंसी में नहीं आते, कई लोग मुझे क्वेश्चन आता है कई लोगों का कि मैंने विजन बोर्ड बनाया, मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं सब करती, तो भी मैं क्यों नहीं मेरे साथ क्यों नहीं वो चीजें हो रही है जो मुझे चाहती, मतलब जो मैं चाहती हूँ। फिर मैं उनको वही बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं पे आप वो फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइनमेंट में नहीं आए हो। वो अलाइनमेंट में कैसे आना है? फीलिंग्स के साथ। जो जो भी आप महसूस कर सकते हो तो ही आप उसको प्राप्त कर सकते हो। आप ऊपर ऊपर से सब कुछ कर रहे हो बट अभी भी अगर आपकी फीलिंग अलाइनमेंट में नहीं है, प्लस मान लो वो मैनिफेस्ट जब कर रहे हो यानी कि आप विजुलाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तब तो आप वो फ्रीक्वेंसी में चलो शायद आ जाते हो थोड़ी देर के लिए, बट फिर पूरा दिन कौन सी फ्रीक्वेंसी में रहते हो? बहुत लो फ्रीक्वेंसी में। लो फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कुछ हुआ, किचन में गए, आपके साथ कुछ हुआ, आपको किसी ने बोल दिया, आप नीचे फ्रीक्वेंसी में चले गए, फिर बिल्कुल भी अलाइनमेंट नहीं है। यानी आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो
और जो आपको चाहिए उसके साथ आप बिल्कुल भी अलाइनमेंट में नहीं हो, बिकॉज मोर देन 50% ऑफ द टाइम यू स्टे इन लो फ्रिक्वेंसी जोन। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी में महसूस करना, वही फीलिंग्स को यूनिवर्स की तरफ भेजना, क्योंकि आप मैग्नेट है, जो फ्रिक्वेंसी पे आप होंगे वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोच रहे हो। कभी कभी हम ऊपर ऊपर से तो सोचते हैं, बट हमारी भावनाएं कुछ और बताती है, और फिर वो भी होता है कि जो भावनाएं होगी उसी तरफ धीरे धीरे थिंकिंग भी जाएगी। तो सेम सिमिलर वे में सब कुछ होता है। सो लेट्स रीड फर्दर। अगर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं तो आपके उत्साह की फ्रिक्वेंसी उत्साही लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। अगर आप डर रहे हैं तो आपके डर की फ्रिक्वेंसी डर से भरे लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। आप किस फ्रिक्वेंसी पर हैं इसे लेकर आपको कभी कोई शंका नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी हमेशा वही होती है जो आप महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रिक्वेंसी बदल सकते हैं। क्योंकि अब आप एक नई फ्रिक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी चेंज करना हमारे हाथ में होता है। जब इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे, मैं सच बोलूं तो ये इतना अवेयरनेस आता ही नहीं था कि मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हूँ, या मैं कौन सी भावनाएं मैं दे रही हूँ, कौन सी फीलिंग फ्रीक्वेंसी पे हूँ। फिर धीरे 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 जितनी अवेयरनेस बढ़ती गई, तब जाके अभी यस कुछ कुछ बोल सकती हूँ कि हाँ पता चल जाता है। बट यस, ये इसमें बहुत अलर्टनेस अवेयरनेस की जरूरत होती है। मैं कभी कभी जब मेडिटेशन करवाती हूँ तो मैं बोलती हूँ ना कि आप कौन सी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहे हो, यानी जो हमारी फीलिंग्स होंगी उसी फ्रिक्वेंसी पे हम वाइब्रेट हो रहे होते हैं। देखो क्वांटम फिजिक्स में हम क्या पढ़ के आए हैं अब तक, हमने सीक्रेट मूवी में भी देखा, हमने कई जगहों पे पढ़ा। क्या पढ़ा कि हम ये पूरा, भले हम सॉलिड दिखते हैं बट हम सॉलिड है नहीं एक्चुअली। हम क्या है, अणु परमाणु है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, और वो किसी न किसी ऐसे 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 वाइब्रेट होते हैं। सारी चीजें वाइब्रेट हो रही है यूनिवर्स के अंदर, और जो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होगी वैसी ही चीजों को वो आकर्षित कर रही है। तो हम भी क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, हम भी किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होते हैं, क्योंकि हम भी एनर्जी है। जैसे सब कुछ यूनिवर्स के अंदर एनर्जी है, वैसे ही हम भी एनर्जी है, और हम किसी वाइब्रेशन के ऊपर वाइब्रेट होते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और जो फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट हो रहे होंगे, सही वही सेम फ्रीक्वेंसी हम यूनिवर्स में भेजते हैं, और वही परिस्थितियां, घटनाएं, यानी कि वही सर्कमस्टेंसेस, उसी टाइप के लोग, वही सब कुछ हम आकर्षित कर रहे हैं। मेरी जॉब के अभी ऊपर एक लड़की आई है, तो जैसे अभी मैं उसको अभी मिली हूँ, क्योंकि बीच में जब मैं जाती थी तब वो नहीं होती थी। सो अभी मैं उसको मिली, उसने अभी अभी स्टार्ट किया है। तो इतनी उत्साह भरी लड़की, मतलब इतनी टॉकेटिव भी है, और बहुत पॉजिटिव उत्साह वाली एकदम। तो यानी दिन मेरा कल कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। इतनी बातें करती है अपनी खुद की, मतलब अच्छी पॉजिटिव बातें, और कुछ कुछ बीच बीच में हंसाती भी है। तो यस, आई वाज थिंकिंग yesterday, like, you know, that is how we attract people in our life. तो यानी मेरा दिन कल कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। जॉब के ऊपर भी एक अभी मजा आ रहा है सभी चीजों के अंदर। तो यस, जो फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करेंगे वही फ्रीक्वेंसी के लोग, परिस्थितियां हो, सब कुछ आकर्षित करेंगे। तो ये क्वांटम फिजिक्स की ये चीज आपको समझनी है। पहले तो समझना पड़ता है लॉजिकली, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन में धीरे धीरे लाना है कि अगर मेरी बॉडी या मैं अभी कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही हूँ। धीरे धीरे इनर वाइब्रेशन की हमें जो है वो देखना पड़ता है कि मेरी अभी कौन सी वाइब्रेंस फ्रीक्वेंसी पे मैं वाइब्रेट हो रही हूँ। यानी अगर उत्साह वाली फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही हूँ
तो वैसे ही उत्साह भरे लोगों को मैं आकर्षित करूंगी। और मुझे धीरे धीरे ऐसे लेवल तक जाना है जहां पे मैं बहुत इजीली देख पा रही हूँ कि मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही हूँ। क्या मेरे अंदर अभी एकदम जुनून है, यानी कि पैशन है, उत्साह है, जॉय है, ब्लिस है, ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी पे हो या प्यार की फ्रीक्वेंसी पे हो, वो मुझे ही अपने लिए देखना पड़ेगा। और जब मैं अगर मान लो मैं कोई लो फ्रीक्वेंसी में हूँ, तो ऑफ कोर्स पता तो चली जाएगा कि नहीं, मैं इतना अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, तो वो मेरे हाथ में है अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना। तो कल जैसे एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को देख रही हूँ कि हाँ नहीं, मैं इतनी हाई में फ्रीक्वेंसी में नहीं हूँ अभी, खाली ऐसे कोई न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी पे हूँ, एंड आई वांटेड टू ब्रिंग माई सेल्फ। तो यहीं पे हमने जो पढ़ा है वो चीजें मैंने अप्लाई करना चालू की कि व्हाट डू आई लाइक। तो कल ऐसा भी हुआ कि मैंने अपनी एक कजिन सिस्टर को फोन किया, मतलब भाभी को, और एकदम से पता नहीं, मुझे इंट्यूशन तो आ ही गया था कि वो लंदन गए होंगे, क्योंकि अभी हमारे जो धर्म के जो है वो लंदन में है, तो सब हमारे जो धर्म के लोग होते हैं वो जाते होते हैं यूजुअली इन दिस पीरियड। तो मैंने उनको फोन किया एंड शी सेड या वी जस्ट केम टुडे टू लंदन एंड वी विल बी हियर फॉर 18 days। मुझे इतनी खुशी हो रही है अंदर से, ओ माय गॉड, जैसे मैं ही हूँ। सो दिस इज हाउ, जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना कि अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी फीलिंग हो रही है उसको एम्पलीफाई करो। तो आई डिड दैट, आई एम्पलीफाइड माई फ्रीक्वेंसी टू मैच दैट फ्रीक्वेंसी। एंड देन दिन में भी ऐसा हो रहा था कि लाइक मान लो कोई कुछ बोल रहा है, जैसे मान लो ये जो एक नई जो एम्प्लॉय आई है, उसी के साथ बात करते करते मान लो उसने कुछ ऐसी चीज बोली, तो आई वुड स्टार्ट फीलिंग के मुझे क्या पसंद है, यानी मुझे कौन कौन सी चीज पसंद है, मैं वो लिस्ट करने लगती और उसी टाइम पे मैं उसके लिए बहुत खुश होती। यानी दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस कि एम्पलीफाई करना अपनी फीलिंग्स को। यानी मान लो वो कुछ चीज की बात कर रही है, तो ऐसे ही चलो कुछ बालों के रिलेटेड कुछ बात हुई, तो यस मुझे क्या पसंद है, यस आई लव शाइनी ब्यूटीफुल हेयर, तो उसको मैंने एम्पलीफाई करने की कोशिश की वो फीलिंग्स को, कि यार मुझे इतने पसंद है यार ऐसे बाल, जस्ट ऐसे ही होता है। यानी ये छोटी छोटी चीजों में ही आपको एम्पलीफाई करनी है अपनी फीलिंग्स को, कि आपको जो भी चीजें पसंद है। फिर अचानक से पता नहीं, परसों की बात है रात की, कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों, उनके साथ कुछ किसी चीज की बात हो रही थी, सेंट लुइस में आर्च है इसकी, ये वो, इसकी बात हो रही थी। अचानक से ताजमहल की बात निकली, और फिर मैं सोच रही हूँ कल कि वाओ आई लव दिस 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आई वांट टू विजिट ऑल ऑफ देम वन बाय वन। तो ताजमहल के ऊपर से, तो आई अगेन ट्राई टू एम्पलीफाई दैट फीलिंग, वाओ कितने मजेदार है, यानी ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के जो कुछ अद्भुत है उनके अंदर, कुछ ना कुछ चीजें क्रिएशन में ऐसी क्रिएट हुई है जो और कहीं पे नहीं है, मतलब बिल्कुल यूनिक है वो चीजें। तो आई स्टार्टेड visualizing and I started amplifying my feelings towards it. So this is just an example I am giving here, how you can amplify your feelings for whatever you like things. जैसे रोंडा बर्न ने बताया कि she would start listing things that she likes, और जो मे बी अपनी लाइफ में भी जो भी चीजें हो रही है, so that we don't focus on what we don't want, we focus on what we want. फिर कहीं पे किसी ने पिक्चर भेजा के 2 कार पड़ी है और यानी वहां पे वो बोले सॉरी एयरप्लेन का वो है, कॉकपिट है या हेलीकॉप्टर है, और 2 कार्स पड़ी हुई है एंड नीचे लिखा हुआ है वो पिक्चर के अंदर, दिस इज व्हाट आवर लाइफ विल बी इन नोवाटेक, लाइक जो एक्चुअली वो जो कंपनी की किसी चीज की वहां पे वो पिक्चर भेजी थी। तो आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग दैट ऑल्सो एंड आई स्टार्टेड एम्पलीफाइंग माई फीलिंग्स। वाओ ऐसी लाइफ है कि जहाँ पे आप कार लेके जा रहे हो, आपका खुद का कॉकपिट है, कॉकपिट है सॉरी, आपका खुद का वो हेलीपैड है, जहाँ पे आप अपने खुद के हेलीकॉप्टर में जा रहे हो, या मे बी आपका खुद का जेट है, सो
these are little things, big things. Yes, you are very open and you are very powerful being. आप कुछ भी हासिल कर सकते हो. तो yes, जो भी आपको यूनिवर्स का क्लू Alicia, मिलता है उसके ऊपर आप अपना Alicia, I have फीलिंग को एम्पलीफाई करो. Anybody said Alicia, something? I have one question. Yes. I said Bhavini here. So I हाँ have जी. one question that especially for money happens is that इस society में बहुत ही money को abuse करते हैं. As we all know, you know, money is the root cause of all evil and ये सब negative बोलते रहते हैं. So when you are surrounded by such people, how to amplify and raise our vibration for money especially? Because मेरा अभी कुछ लोगों से ऐसा interaction हुआ, they were extremely low on money और आए दिन social media पे भी ऐसे ही message आते रहते हैं. So how to protect our mind from such negative thinking about money, categorically money, and how to be in the high vibration? Can you guide on that? Yes, तो see what is happening. कहीं ना कहीं पे अगर आप थोड़ा सा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, मे बी लिटिल बिट यू आर ऑल्सो इन दैट फ्रिक्वेंसी और समथिंग, और मे बी पहले कुछ ऐसा दिया है जिसका Yes. ये प्रतिक्रिया है, जो रिएक्शन होता है. Mm-hmm. यानी हमारी लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू अस, इट्स नॉट हैपनिंग टू अस. तो कहीं ना कहीं पे वो है. दूसरी बात कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है. आई क्रिएट माई रिसोर्सेज फ्रॉम एन इनफाइनाइट सोर्स. अगर आप ऐसी लो वाइब्रेशन में किसी की वजह से जा रहे हो, स्टार्ट योर ओन एफर्मेशंस. आप अपने एफर्मेशंस अंदर ही अंदर रिपीट करना चालू कर दो, एंड यू विल बी बैक अगेन इन हाई फ्रिक्वेंसी. और आपको उस टाइम पे कुछ लगता है कि अच्छा. मेरे अंदर भी मैं भी लो में जा रही हूँ इसकी वजह से, देन देयर इज समथिंग विद इन यू, देयर इज नथिंग इन आउटसाइड. तो आपको उसी टाइम पे हाँ उसको रिलीज करना है. हाँ. उसी टाइम पे ओके, सो आप लिख वो के रिलीज अफर्मेशन कर से सकते. रिलीज हो जाएगा. नहीं, पहले लिख लो. जैसे कल मैं हमने बोला कि लिख लो पहले, और उसको फिर आप एफर्मेशन से रिप्लेस करो, रिलीज करो और फिर एफर्मेशन से रिप्लेस समझ करो. गई. और फिर ईएफटी भी कर वंडरफुल सकते हो उसी टाइम वंडरफुल. पे. EFT के आई एम फीलिंग ओके. वेरी लो ऑन मनी बट आई स्टिल डीपली एंड कंप्लीटली लव एक्सेप्ट एंड ऑनर माई सेल्फ. या ऐसे भी बोल सकते हो कि यार जब ठीक ये है. लोग मनी के बारे में बात करते हैं, आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट मनी, और जो भी है तो उसको रिलीज करो EFT के साथ. यस. देर आर. वंडरफुल. I'll do this. या. यस. यस. सो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को चेक में पहले तो रखना है और उसको एम्पलीफाई करते रहना है. अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी में हैं, अगर लो फ्रीक्वेंसी में बार बार जा रहे हैं, तो अपने आप को किसी न किसी तरह से वापस हाई फ्रीक्वेंसी में लाने के लिए जो करना पड़े वो करना है. बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी इन द लो फ्रीक्वेंसी एट दिस मोमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी इन द हाई फ्रीक्वेंसी. तो ही हम अपनी सपनों की लाइफ की तरफ जा रहे हैं. यानी जो लाइफ एक्चुअल में हम ये धरती पे जीने के लिए आए हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है. ये धरती पे जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं वो एक्सपीरियंस करने आए हैं. जितने भी खूबसूरत रिश्ते हैं वो एक्सपीरियंस करने आए हैं. हम अपने काम के अंदर भी हम वो खूबसूरती को एक्सपीरियंस करने आए हैं. यानी काम के अंदर हम वो सारी चीजें नहीं एक्सपीरियंस करने आए कि पूरा दिन खटते रहो, ऐसा काम करो जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसमें बार बार लो में जा रहे हैं. एटलीस्ट मैजिक बुक के साथ स्टार्ट करते तो जो वर्क्स लाइक मैजिक की जो 6th डे की प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे हम भले हम जो भी काम कर रहे होंगे वो काम में हम ग्रेटिट्यूड धीरे धीरे लाना चालू करते हैं. फिर जैसे जैसे वो चीजें प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी में आने लगते हैं जहाँ पे हम जो काम भी कर रहे हैं वो भी अभी हमें पसंद होने लगा है. वो काम भी हम कहीं ना कहीं पे धीरे 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 एंजॉय करने लगते हैं. और फिर क्या ऐसे ऐसे मैजिक्स होते हैं कि फिर धीरे धीरे आप ऐसे कामों की तरफ जाने लगते हो जिसके लिए आप बने हो, जो आपको बहुत पसंद है करने में. बट वो सब कुछ इंटरलिंक्ड है. अभी आज के मेरे काम के लिए अगर मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, there is no way I can I can attract whatever I can attract the work that I really am passionate about.
ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कल किसी का क्वेश्चन था कि वो अपनी जॉब में जो भी है, तो उनके लिए मेरा यही आंसर होगा वापस, वन मोर टाइम आई विल रीइटरेट, कि जब तक वो अपने काम को लेके खुश नहीं होते, एटलीस्ट अभी वो ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में नहीं आते, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इधर शी शुड चेंज द वर्क, जहाँ पे उसको जो वर्क पसंद है वो या तो चेंज करे, या तो फिर जो काम अभी कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा कृतज्ञता लेके आए। दो ही ऑप्शंस है उनके पास। और अगर वो आपकी बेटी है तो आप अगर कुछ नहीं कर, मे बी थोड़ा थोड़ा सिखाइए, समझाइए। अगर वो उसका टाइम आया होगा और उसका समझने का टाइम आ गया है, उसका ये जर्नी में आने का टाइम है, तो वो समझ जाएगी, वो आपकी बातों को धीरे धीरे समझ के इम्प्लीमेंट करेगी। अगर उसका टाइम नहीं आया, आप बोल रहे हो कि हाँ मुझे ये सब करने से बहुत फायदा हुआ है, तू भी ये करेगी तो तुझे भी बहुत फायदा होगा, बट फोर्स किसी को नहीं करना है। सबकी जर्नी खुद की जर्नी होती है। हम सबको ये बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये करने से इतना फायदा हुआ है, आप भी ये करके देखो, आपको भी बहुत फायदा होगा। बट अगर उनको ये बात नहीं अभी समझ में आ रही है तो डोंट फोर्स इट। सो या लेट्स रीड फर्दर। आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति का अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम हो सकता है। कोई भी परिणाम इसलिए हो सकता है क्योंकि उस परिस्थिति के बारे में आप अच्छी या बुरी कोई भी भावना रख सकते हैं। कोई तो हर संबंध, एक चीज के लिए, जैसे अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप कुछ बिजनेस करते हो, आप वो बिजनेस में हो, यानी अभी जो भी परिस्थिति होगी, आपको आपको अपनी फीलिंग्स को कैसे एम्पलीफाई करना है वहां पे भी, कि आप जो बिजनेस करना चाहते हो तो आप हमेशा वो विजुअलाइज कर रहे हो। ओके, वन मोर थिंग, कि हमारे माइंड के भी कुछ कुछ स्टेट ऑफ माइंड्स होते हैं, जो जो फ्रीक्वेंसी में हमें पहले आना है, ताकि हम उसको अच्छे से विजुअलाइज कर पाए। यानी हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, अपने आप को पूरा रिलैक्स करते हैं। जब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, जब हम रिलैक्स होते हैं, तब हम कौन सी फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, अल्फा वेव्स ऑफ द ब्रेन उसको बोलते हैं। वो अल्फा वेव्स में जब हम जाते हैं रिलैक्स स्टेट में, तब जब हम जो भी विजुअलाइज करते हैं, बहुत जल्दी वो आपके अंदर सिंक इन हो रहा है सबकॉन्शियस के अंदर। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अभी वापस बाद में आप वापस आती हूँ कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, अभी आपको क्या परिणाम चाहिए वो बिजनेस के अंदर, जितना आप उसके ऊपर फोकस करोगे, जितना आप वो चीज के ऊपर अपने आप को लेके रिलैक्सेशन स्टेट में लेके, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, अपने आप को विजुअलाइज करो एंड देन स्टार्ट विथ वॉट एवर यू आर स्टार्टिंग। सो अपने आप को वो फ्रीक्वेंसी में लाके फिर वो स्टार्ट करो। तो ऐसे करने से क्या होगा कि अभी अभी जो भी परिस्थिति होगी, मान लो परिस्थिति ऐसी है कि बिजनेस चल नहीं रहा है, इन्वेंट्री नहीं अच्छे से मैनेज हो पा रही है, या फिर कस्टमर्स के साथ जो रिलेशन होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए पहले तो रिलैक्स्ड अल्फा स्टेट में जाके ये विजुअलाइज करना है आपको जो परिणाम चाहिए। वो कोई भी परिणाम इसीलिए हो सकता है क्योंकि उस परिस्थिति के बारे में आप अच्छी या बुरी कोई भी भावना रख सकते हैं। तो अगर आपको जो परिणाम चाहिए उसके लिए आपको वो फ्रीक्वेंसी में जाना है। करंट स्थिति जो भी होगी, जैसे भाविनी ने बताया, करंट स्थिति हो सकती है कि लोग, आपके आसपास वाले लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव है उसके बारे में, आपको भी बार बार वो घसीटते हैं उसके अंदर। अभी आपका क्या यहाँ पे रोल रहेगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोल रहा है, मैं अपना विजुअलाइज करूंगी कि मेरे पास मुझे जो चाहिए वो इस तरह से मेरे पास है, आ चुका है, वही फ्रीक्वेंसी पे मुझे वाइब्रेट करना है। सो लेट्स रीड फर्दर। कोई संबंध सुखद, आनंददायक, रोमांचक, संतुष्टिदायक और सकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है। दूसरी ओर कोई संबंध नीरस, कुंठाजनक, चिंताजनक, द्वेषपूर्ण, हताशाजनक और नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर भी हो सकता है।
उस संबंध का कोई भी परिणाम हो सकता है और आप जैसा महसूस करते हैं उसी से यह तय होता है कि उस संबंध में क्या घटित होगा। आप उस संबंध के बारे में जो भी भावना दे रहे हैं वही आपको उस संबंध में वापस मिलेगी। यदि आप संबंध के बारे में अधिकांश समय खुश महसूस कर रहे हैं तो खुशी की फ्रीक्वेंसी पर होने के कारण आपको उस संबंध से खुशी मिलेगी। यस, तो अगर कोई संबंध यानी रिलेशंस में भी आपको पता चल जाएगा कि आप वो रिलेशन के साथ कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हो, परिणाम में जो मिलेगा उसी से पता चल जाएगा। सब कुछ हमारे अंदर है, जो फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट होते हैं वही हम बाहर अट्रैक्ट करते हैं। अगर आज मान लो मेरा कोई संबंध ऐसा है जहाँ पे नीरस है, कुंठाजनक है, चिंताजनक है, यानी वहां पे हमेशा एक निराशा लगी रहती है वो रिलेशन के अंदर, या हमेशा कुछ ना कुछ वरीसम हो जाती हूँ अगर वो रिलेशन के साथ में होती हूँ, या मैं फियर में चली जाती हूँ अगर वो रिलेशन के अंदर, अगर मैं नेगेटिव हो रही हूँ वो रिलेशन के साथ, कहीं ना कहीं पे वो रिलेशन के लिए मैं खुद ऐसी कोई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही हूँ, इसीलिए मैंने ये अट्रैक्ट किया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बरसों से मैं वो फ्रीक्वेंसी पे हूँ, इसलिए वो रिश्ता आज और बुरी उसकी तरफ, परिणाम की तरफ जा रहा है, बुरे परिणाम की तरफ। इसलिए अगर आज भी मैं नहीं बदलती अपनी फ्रीक्वेंसी को, मैं कभी वो रिश्ता अच्छा नहीं कर पाऊंगी। बट अगर अभी मुझे समझ आ गया कि नहीं, सब कुछ मेरे पे ही डिपेंड करता है, सब कुछ मेरी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, आई कैन चेंज दिस फ्रीक्वेंसी एंड आई कैन चेंज दिस रिलेशन इफ आई वांट टू। इसलिए हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं विद ग्रेटिट्यूड, कि एटलीस्ट हम ग्रेटिट्यूड लिख के धीरे 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 अपने अंदर थोड़ी थोड़ी सी प्योरिटी लाने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे हम अपने अंदर प्योरिटी लाते हैं, हम देखते हैं कि बाहर वो रिश्ता ठीक होने लगा है। फिर कभी कभी वो रिश्तों के अंदर कुछ अंदरूनी ऐसी बरसों से कोई चीज है जो मुझे मे बी माफ करने की जरूरत है या माफी देने की जरूरत है, देन इट कम्स द एडवांस प्रैक्टिस, बट इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। वो इजी होता है, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस इजी होती है। किसी को माफ करना एकदम से मैं आपको बोलूं नहीं आप किसी को माफ कर दो, वहां पे थोड़ा सा क्या होता है कि एक तो हमारा जो ईगोइस्टिक माइंड है वो बहुत, उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। वो पहले तो हमें वो एक्सेप्ट ही नहीं करने देगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि नहीं मेरे अंदर कुछ है। वो हमें बार बार वही बताएगा। और वो देखो यहाँ पे अलर्टनेस, अवेयरनेस भी कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मुझे ये अवेयरनेस ही नहीं होगी कि मेरा ईगो मुझे बता रहा है कि नहीं वही पर्सन में ही प्रॉब्लम है, उसी को वो ब्लेम करेगा ईगो जाके बार बार। और मैं इनफैक्ट अलर्ट और अवेयर भी नहीं होगी वो चीज के लिए कि ये ऐसा 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 हो रहा है एक्चुअल में। तो जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, माफी का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल नहीं है। मैं आज ऊपर ऊपर से माफी मांग रही हूँ, बट अंदर से तो मैं अभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ कि एवरीथिंग इज विद इन मी एंड आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैं अगर जब तक मैं अंदर से बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, बाहर में जितनी भी माफी कर लूं कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यानी एटलीस्ट चलो स्टार्ट हो गया है वो प्रोसेस। हाँ, धीरे 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 फिर अगर आप डटे रहे, रोज करते रहे, तो शायद धीरे 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 वो एहसास में आ जाओगे। बट इसीलिए द इजीएस्ट प्रैक्टिस फॉर ऑल ऑफ अस इन एनी रिलेशन इज write down gratitude for that person and keep continuing focus gratitude if that relationship is not still the way you want it to be। तो पहले तो फोकस्ड ग्रेटिट्यूड वही रिश्ते के लिए करना है। एटलीस्ट मैं बोलूंगी कि अगर रिश्ता ऐसा है कि जहाँ पे रोज प्रॉब्लम हो रही है, आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 6 months तक तो फोकस ग्रेटिट्यूड कीजिए पहले। यस, साथ साथ में होपोनोपोनो की प्रैक्टिस कर सकते तो वो भी, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। जो भी मतलब जो भी टेक्निक्स आपको समझ में आ रही है वो करते जाइए, बट यस फोकस्ड ग्रेटिट्यूड आपको बहुत जल्दी जल्दी उस दिशा में लेके जाएगा जहाँ पे आपका रिलेशन बेहतर 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 होता जाएगा। तो जो भी फ्रीक्वेंसी रिलेशन के अंदर मैं दे रही हूँ
वो ही उसका परिणाम मुझे मिलेगा। इतनी सिंपल सी बात है, बट या Alicia, इट इज वेरी Alicia, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यस भाविनी। Alicia, for this Ho'oponopono ना, मैं आज का एग्जांपल बता रही हूँ। मैं आई एम एट नेचुरोपैथी सेंटर ना, एज आई टोल्ड, सो आई एम अंडर गोइंग माय ट्रीटमेंट। तो मेरी बाजू में ना एक कपल रहने आया है, तो मैंने ना मतलब उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोचा, वो लेडी के बारे में, ठीक है। सो मैं आज दोपहर को खाना लेके मेरी रूम में आ रही थी, तो शी वॉज कमिंग, वो और उसके हस्बैंड जा रहे थे, तो मैंने ना फिर से नेगेटिव सोचा। फिर मैंने खुद को बोला कि नहीं, मैं उसके बारे में क्यों नेगेटिव सोच रही हूँ, आई शुड नॉट बी थिंकिंग लाइक दिस, यू नो, इट्स नॉट द राइट वे। तो फिर मैंने ना तुरंत होपोनोपोनो प्रेयर किया, और उसको मतलब दिल से बोला था, ऐसे नहीं कि मुझे खाली बोलना था इसलिए, बट मैंने दिल से बोला, बिकॉज आई वांट टू चेंज माय थिंकिंग पैटर्न। तो यू वोंट बिलीव, वो लोग मेरे से मतलब ऐसे मेरे पास में से गए, तो भी मुझे बोला कि शुड वी कीप योर प्लेट इन योर रूम, बिकॉज अभी मेरा आज 13 दिन है ना, फास्टिंग का डे 13 है, तो इतना ताकत नहीं है मेरे में। तो ऐसे नहीं नहीं, आई विल मैनेज। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो आगे जाके वापस आई और जबरदस्ती मेरी प्लेट लेके मेरे रूम में रख के आई। तो आई एम तो वाह, लाइक, यू नो, मुझे अभी अभी जैसे तुम बता रही हो ना, तो मुझे ऐसे आंसू आ रहे हैं आंख में कि यार कितनी छोटी बात थी, थोड़ा सा मैंने चेंज किया खुद को और कैसे सब चेंज हो गया। यस यस, तुरंत तो होता है, कितना तुरंत इमीडिएटली एक्ट करता है ये। हाँ, हाँ। तुरंत ही हुआ। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। यस, ऐसे ही होता है, जैसे ही हम कुछ चेंज करते हैं। उस दिन सकीना ने भी शेयर किया, और मेरी लाइफ में रोज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पे जैसे ही हम अपनी थिंकिंग को चेंज करते, फीलिंग्स को चेंज करते, बाहर सब कुछ बदलने लगता है। तो लेट्स रीड फर्दर। देखो वही चीज यहाँ पे हाँ, बता रहे हैं कि भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। तो नेविल गोडार्ड ने फीलिंग्स के बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, और फीलिंग्स के ऊपर उन्होंने एक पूरी बुक लिखी हुई है। तो ये जो चीज उन्होंने बोली है, उसके अंदर बहुत गहरा ये सीक्रेट छुपा हुआ कि भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। तो यहाँ पे अभी हमको सबको एक एग्जाम्पल भी मिल गया, भाविनी ने जो दिया। जैसे ही उसने वो कपल के लिए भावना बदली, भाग्य धीरे अपने आप, यानी कि बाहर की चीजें अपने आप बदल गई। तो अगर आज आपको किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, किसी के भी साथ आपको रोज रोज प्रॉब्लम आ रही है, वो रिश्तों के अंदर या वो जो भी, प्लीज चेक ऑन योर सेल्फ कि कहाँ पे मुझे अपनी भावना को बदलने की जरूरत है, कहाँ पे मैं अपनी फीलिंग्स को चेंज करूं, जो यहाँ ये बाहर भी चेंज हो जाए। तो लेट्स रीड फर्दर। भावनाओं की फ्रीक्वेंसीज की सूची पर एक नजर डालने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि विषय चाहे जो हो, भावनाओं की कई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, और अपनी भावनाओं द्वारा ही आप हर बात के परिणाम को तय करते हैं। यानी अपनी भावनाओं के द्वारा ही, यानी यहाँ पे अपनी भावनाओं, किसी और की भावनाओं पे हमें नहीं काम करने जाना है। मुझे लगता है नहीं, ये मुझे मैनिपुलेट करता है, मैं उसको जाके बदल दूं, या ये मेरे साथ ऐसे करता है, नहीं, कुछ नहीं होगा बाहर। आप इतना संघर्ष करते रहोगे, कुछ भी नहीं बदलेगा बाहर। मैं इतना भी कोशिश कर लूं, मैं किसी को नहीं बदल सकती। अगर कोई पर्सन है जिसको मैं चेंज कर सकती हूँ, जिसकी फीलिंग्स में चेंज कर सकती हूँ, वो मैं खुद हूँ। मैं अपने ही आप को बदल सकती हूँ, किसी और को बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकती। जितना हम ये बिठा लेते हैं ना अपनी लाइफ में, बहुत आसान हो जाती है लाइफ, बहुत ही आसान, क्योंकि पावर मैं बाहर कहीं पे भी दे ही नहीं रही हूँ। मैं अपना पावर खुद समझती हूँ कि मैं ही इतनी पावरफुल हूँ ये सब चीजों को चेंज करने के लिए। यानी मेरी भावनाओं से मेरा भाग्य बदलेगा। तो मुझे बार बार देखना है व्हाट फ्रीक्वेंसी आई एम वाइब्रेटिंग एट, व्हाट feeling frequency I am sending into the universe right now. Am I sending good frequency? Am I sending high frequency? Or am I sending low frequency? गुड से भी कभी कभी काम नहीं चलेगा, थोड़ा ऊपर 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 जाना है। और इसीलिए यहाँ पे मैजिक बुक की प्रैक्टिस बहुत काम आती है कि बार बार हम अपने आप को कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी में लेके जाए।
इसीलिए मैजिक बुक की प्रैक्टिस बहुत काम आती है हमें, कि अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए। आप देखना, आप लो में हो, आप 10 खाली ग्रेटिट्यूड लिख के देखिए उसी टाइम पे, आप तुरंत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी में चले जाओगे, तुरंत ही आप अच्छा महसूस करोगे अपने अंदर से ही। सो मैम अगर लिख ना पाए तो वर्बली भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, वर्बली भी कर सकते हो, या ओके, थैंक यू। यस। मैम अभी मैं बाहर हूँ तो मैं सुबह उठ के लिखती नहीं हूँ, बोलती ही हूँ। ओके, या दैट्स फाइन। बट एक छोटी सी डायरी अपने साथ हमेशा रखो, जब भी लिख सकते हो तो लिख लो। मान लो सुबह नहीं उठ के लिख पा रहे हो, मैं ऐसा करती थी जब मैं इंडिया में भी आई थी लास्ट ईयर, फेब्रुअरी में मैं इंडिया आई थी, तो उस टाइम पे मैं ये सब चीजें प्रैक्टिस कर ही रही थी ऑलरेडी। तो फिर मैं एक छोटी सी, बहुत छोटी सी डायरी मेरी बैग के अंदर हमेशा रखती थी। तो मैं क्या करती थी, लाइक एयरप्लेन में हूँ तो भी डायरी निकाल के लिखने बैठ जाती थी, या फिर मैं ट्रेन में कभी कभी एक बार मैंने ट्रेन में सफर किया था, यानी मैं अहमदाबाद लैंड हुई थी, फिर मुझे सूरत जाना था। तो सूरत जब मैं गई तो मैं ट्रेन में गई थी, 2-3 घंटे का ही रास्ता है कुछ। तो एनीवेज मैं ट्रेन में पूरा टाइम में अपना अपना लिखती रही। फिर ट्रेन में भी मुझे इतने ज्यादा अच्छे अनुभव हुए थे उस दिन, एक्सपीरियंसेस हुए थे। जो मेरे साथ जो लेडी थी वो इतनी, अभी भी वो मेरे साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन में है। तो ऐसी वो लेडी के साथ मेरी वहां पे मुलाकात हुई थी, जो इतनी मजेदार थी। यानी वो लेडी जो भी वहां पे थी, गुजरात से ही थी, और उसने मुझे स्वामी नारायण थी, तो वो वहां से वो कुछ फूड भी लेके आए थे और उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था, और इतना मजेदार फूड था जी, अभी भी मुझे याद है। तो मैं अपनी डायरी अपने साथ रखती हूँ, लिखती रहती हूँ अपना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आसपास के लोग देख रहे हैं क्या सोच रहे होंगे कि ये क्या लिख रही है, ऐसा कुछ कुछ नहीं, मैं अपना अपना करती रहती हूँ जब भी बाहर भी कभी हूँ तो। थैंक यू याद दिलाने के लिए। मैं आज ही चालू कर दूंगी। डायरी पेन पड़ा है एक सामने, छोटी लेकिन लिखना याद नहीं आया। सी, हाँ, पॉकेट टाइप की डायरी रख के उसमें भी लिख सकते हो। मेरी डायरी तो पॉकेट डायरी नहीं थी, थोड़ी सी बड़ी थी, बट यस, एक छोटी सी जो किताब होती है वो भी रख सकते हो, हम्म। एटलीस्ट कहीं पे भी, जब कभी भी आपको टाइम मिलता है लिखना चालू कर दो। एटलीस्ट इधर उधर की बातें सोचने से अच्छा है कि यस यस, वही अभी मैंने सोचा कि इतना दिमाग लगाती हूँ, हॉस्पिटल की बातें घुमाती हूँ, इससे अच्छा लिख लूं। सही बोल रहे हाँ, एग्जैक्टली। और ये रीप्रोग्रामिंग हो रहा है माइंड, सो दैट इज ऑल्सो वन गुड थिंग अबाउट इट। हो। तो लेट्स थैंक रीड। यू। और मोस्टली अभी आई पूनम आई है क्या, लेट मी सी, या ऑलमोस्ट देयर। ओके, लेट्स रीड दिस। भावनाओं की फ्रीक्वेंसीज की सूची पर एक नजर डालने भर से ही आपको, नहीं इसके बाद का पढ़ना, ठीक है। आप धन दौलत को लेकर रोमांचित, खुश, सुखी, आशावान, चिंतित, भयभीत या निराश महसूस कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रफुल्लित, जोशीले, सुखी, हताश या चिंतित महसूस कर सकते हैं। हाँ, तो अभी जो करंट में आपका होगा, मान लो आप ट्राई तो करते हो बट नहीं फील कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा वो उसमें आने में शायद थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी। जितना गहरा हमारा दर्द होता है, जितनी गहरी हमारी बिलीव्स होती है, इतना ही थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी ऊपर आने में, अपने खुद को ऊपर लाने में टाइम लगता है। सो गिव योर सेल्फ दैट टाइम, बट डोंट थिंक इट दिस डजंट वर्क। नहीं, यू नो जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, धीरे 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 सब कुछ होगा। अगर ओवरनाइट नहीं भी बदलता है, धीरे धीरे आप ऐसे फ्रीक्वेंसी में आते जाओगे जहां पे धन दौलत को लेकर आप हमेशा रोमांचित रहते हो। या आप अभी की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप बदलना स्टार्ट करोगे। ऐसे ही अगर स्वास्थ्य के बारे में, अगर आपकी कोई भी अभी परिस्थिति होगी जो भी है, जिसकी वजह से मे भी आप हाई फ्रीक्वेंसी में जाना आपके लिए इतना आसान नहीं होता, आई अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट प्रैक्टिस, दिस प्रैक्टिस विल टेक यू देयर, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली। और फिर ये एफर्मेशंस बहुत काम आते हैं उस टाइम पे। एफर्मेशंस करते जाइए जो भी है उसके बारे में।
तो यहाँ पे वापस ये चार्ट दिया गया है। प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, जोश, रोमांच, उत्साह, आशा, संतुष्टि। और नीचे की जो फीलिंग्स है, जो डार्क वाली, वो है उब, चिढ़, निराशा, चिंता, आलोचना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ग्लानि, हताशा एंड भय। तो ये जो लाइन की एबोव की फ्रीक्वेंसी है, यानी संतुष्टि की अगर फ्रीक्वेंसी है तो वो इतनी ज्यादा हाई नहीं है। संतुष्टि की फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट ये नीचे वालों से तो अच्छी है, बट धीरे धीरे हमें अगर अपने सपनों की ओर जाना है तो हमें धीरे धीरे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज की तरफ जाना है। तो एटलीस्ट मान लो आज अगर मैं अपने स्वास्थ्य के लिए संतुष्ट भी हूं तो दैट इज अ गुड फ्रीक्वेंसी। बट इफ आई वांट टू improve my health, I have to slowly reach to the higher level of the frequencies. यानी कि धीरे धीरे मैं अपने आप को संतुष्टि में से आशा में ले जाऊं, फिर धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत उत्साह में रहने लगूं, रोमांच हो जाऊं यानी रोमांचित हो जाऊं, फिर जोश में पैशनेट भी हो जाऊं कि जब भी कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, बहुत पैशनेटली अपने हेल्थ के बारे में सोचती हूँ। फिर धीरे धीरे ब्लिस में, आनंद में, यानी हमेशा स्वास्थ्य को लेके आनंद में रहती हूँ। और कृतज्ञता में, कृतज्ञता इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल, बिलो प्रेम, बिलो लव। तो कृतज्ञता यानी इतनी ज्यादा अंदर से कृतज्ञता फील करती हूँ हमेशा अपने स्वास्थ्य के बारे में। एंड देन कम्स द लव की फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट ऑफ ऑल है। बट जब तक हम कृतज्ञता में ज्यादातर नहीं बिताते, यानी ज्यादा समय, तब तक प्रेम की फ्रीक्वेंसी में जाना कहीं ना कहीं पे असंभव है। बिकॉज कृतज्ञता इज द ब्रिज बिटवीन, एक ब्रिज बोल सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द ब्रिज टू रिच टुवर्ड्स लव। तो यस, अब कल से हम पढ़ेंगे। लेट मी एक्चुअली वंस अगेन सी, या तो फिर हम इंग्लिश में थोड़ा रीड करें जब तक पूनम आती है तब तक। इज पूनम हियर? ओके, सो तब तक थोड़ा इंग्लिश में रीड करते हैं। लेट्स डू दैट। हाँ, तो ये हमने कल इंग्लिश में भी ये पढ़ा कि जैसे हम मैग्नेट है और वही फ्रीक्वेंसी पे हम सभी चीजों को आकर अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट की तरह। तो लेट्स रीड फ्रॉम हियर। इफ यू आर फीलिंग एंथुसियास्टिक, If you are feeling enthusiastic, your frequency of enthusiasm will attract enthusiastic people, situations, and events. If you are feeling fearful, your frequency of fear will attract fearful people, situations, and events to you. You are never left in any doubt about the frequency you are on because your frequency is always exactly whatever you are feeling. You can change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency. यस, तो हमें ये हमारी प्रैक्टिस लगेगी कि हमें बार बार अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। इफ आई एम ऑन अ फीलिंग fearful frequency, I have to change that frequency into something at least better than that. धीरे 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 अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, वो मेरे हाथ में ही होगा। तो लेट्स रीड फर्दर। You can take any situation in your life, and if every possible outcome of that situation can happen. Any outcome can happen because you can have any feelings about the situation. कितना मजेदार है कि हम अपनी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके अपना आउटकम बदल सकते हैं। कितनी मजेदार बात है। तो जितना हम जल्दी समझ जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम बदलाव लाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ये समझना, सीखना बहुत 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 जरूरी है। तो और इसको इम्प्लीमेंट करना, यहाँ पे सीख तो लेते हैं, चलो लॉजिकली अंडरस्टैंड तो कर लिया, बट पूरे दिन में अपनी फ्रीक्वेंसी को बार बार चेंज करना, उसको बदलना, वो हमारे हाथ में है। उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी।
तो let's read further. A relationship can be on a happy, joyful, exciting, satisfying, and every good feeling frequency. A relationship can also be a boring, frustrating, worrisome, resentful, depressing, and every bad feelings frequency. Any outcome of that relationship can happen. And the way you feel determines exactly what will happen in that relationship. Whatever feeling you are giving about the relationship is exactly what you will receive back in the relationship. If you are feeling joyful about the relationship, most of the time you are giving love, and you must receive love and joy back through that relationship, because that is the frequency you are on. Yes. अगर रिलेशन को बदलना है तो मुझे मेरी फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी. Very simple and short. But yeah, I know it is easier said than done. I understand. But yes, practice is the key here. You have to keep practicing, and it will change. Initially, start with gratitude. That is the biggest thing, easiest thing that we can do. Start with gratitude. Write gratitude for that person. 10 gratitudes for the difficult relationship. And अगर अभी अच्छी है relation, यानी close relations अच्छे है, but you want it more, अपना better करना चाहते हो, तो फोटो सामने रख के 5 gratitudes. These two are the biggest that can help you in changing your own frequency. So this is the solution for all of our problems. मैम वो लोग के लिए अच्छा अच्छा लिखना है. Yes. हाँ, gratitude यानी अच्छा लिखेंगे, right? नहीं, वो जो उल्टा चल रहा है उसका क्या करना है? क्या? उसको सीधा करने के लिए अच्छा लिखना है. सीधा वो उल्टा नहीं है, एक्चुअली हमारी फीलिंग्स कहीं ना कहीं पे उल्टी है, तो हमें सीधा करने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी फीलिंग्स को बदलना है, इसलिए हमें ही करना पड़ेगा. नहीं, उनको हम नहीं बदल सकते. समझते हैं, लेकिन ऐसे लगता है हमको 10 रिश्ते पे काम करना है. तो एक पकड़ लो, एक पे पहले काम करो, धीरे धीरे होगा. कर रहे हैं एक पे, लेकिन रिजल्ट है अच्छा है. मैंने पता है, आप एक पे हाँ. सक्सेस हो जाओगे तो आप एक साथ में 4 रिश्तों को लेने लग जाओगे, इसलिए पहले एक को नहीं, लीजिए. मेरा बहुत फर्क है. मैं तो ऐसे मजाक कर रही हूँ. मेरे हस्बैंड के साथ बहुत इम्प्रूवमेंट है. मैंने बताया, जैसे मेरी सोच ही अलग थी, वो अलग था. सच में उसको जैसा वैसा एक्सेप्ट कर लें तो इजी हो जाता है. तो काफी फर्क पड़ा है मेरे. Thank you for sharing. So Poonam is here. So let's Poonam, you take over now. The session is yours now. Thank you so much. We were waiting for you. Yes. Hello everybody. Hello. I hope आप सब लोग ठीक हैं. पूनम जी, आपको देखकर और ज्यादा ठीक हो गए. looking so pretty. Thank you. आपकी स्माइल देख के और भी चेहरा स्माइल आ गया मेरे पे. वंडरफुल. और मैं आपको ब्लेसिंग देती हूँ कि जैसी मेरी स्माइल देख के आपको लगता है आप सबकी स्माइल इससे भी ज्यादा बढ़िया हो, और जो भी आपके दायरे में आए ना, वो आपको देख के यही बोले कि आपसे मिलके दिल खुश हो जाता है. Yes. Wow, thank you. आपकी एनर्जी लेकर आज मेरे को मेडिटेशन करना है मैम. बहुत अच्छा. और आपको चाहिए भी, जिस हालात से आप अभी गुजर रहे हो, मेरे ख्याल से अभी आप वहीं पे हो, आपके फादर इन लॉ के पास. नहीं, मैं वहां से हॉस्पिटल से हस्बैंड को आज सुबह मैंने कह दिया था कि मेरे को आज 3:30 आप छोड़, मतलब मैं होटल पे आके रुकूंगी. कि मेरे पास, और रियली में इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने कहा कि जाओ तुम गाड़ी लेके चली जाओ और 5 बजे तक आ जाना, और मैं भी होटल में हूँ. How nice. Very nice. बहुत अच्छी बात है ये. Thank you. तो आज फिर सब लोग रेडी? Yes, we are so much ready. खूब सारा रिलीज करने के लिए और खूब सारा मैनिफेस्ट करने के लिए, राइट?
Yes. वंडरफुल वंडरफुल। आप सब लोग कितने खूबसूरत लग रहे हो आज, या फिर मुझे ही दिख रहे हो? खूबसूरती आपकी आंखों में मैम, है पूजा। आप पूनम इतने जी खूबसूरत हो कि आपको सब खूबसूरत लोगों के साथ लगते रह के हम खूबसूरत लग रहे हैं। हैं। ग्रुप Yes. सभी इस ग्रुप में कलरफुल, सब सभी खूबसूरत लगते हैं। दिख रहे हैं आज। पूनम जी खूबसूरती आपकी आंखों में है। हाँ, थैंक यू। हाँ, ये तो है। अब तो क्या है कि वो मुझे सब कुछ खूबसूरत ही दिखता है, ये बात तो सही है। How nice. I have one question. थैंक यू सो मच। Poonam ji, I have one question. कोई कुछ कह रहे हैं? हाँ, एक अपना question वीडियो ऑन है मेरा। कीजिए। वो जो आपने कहा था ना पोर्टल ओपन है 8 तक, वो मेरे समझ नहीं आया। आप ना थोड़ा सा लाउड बोलिए, आज पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे आवाज क्यों कम आ रही है सबकी। You had said that portal is open up to 8. I couldn't understand that. Can you please explain? आई डोंट अंडरस्टैंड। पूनम वो पूछ रहे हैं मेरे पास कि हेडफोन्स भी नहीं है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी जोर से बोलने की। पूनम आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है मुझे अच्छी सी। ओके, तो वो ऐसा पूछ रहे हैं कि ये जो पोर्टल ओपन है 8 का जो पोर्टल ओपन है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो पोर्टल होता क्या है। ओके ओके, फाइन तो फाइन, आप तो मैं समझा बता दीजिए। राइट। तो अभी पोर्टल्स क्या है कि स्पिरिचुअली जब हम ग्रो करते हैं तब हम ये चीजें समझने लगते हैं। इट्स मोर लाइक कि जैसे हमारे घर के खिड़कियां और दरवाजे खुलते हैं ना, आजकल तो हम सब एसी में बंद रहते हैं, लेकिन कभी कभी बाहर मौसम अच्छा हो तो हम वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां दरवाजे खोलते हैं ताकि फ्रेश एयर आए। तो वैसे ही स्पिरिचुअली भी यूनिवर्स में कुछ खिड़कियां दरवाजे खुलते हैं, राइट? उन्हें हम पोर्टल्स कहते हैं। तो वो पोर्टल्स अलग अलग एनर्जी लेके आते हैं। जैसे कुछ पोर्टल्स होते हैं वो रिलीज के लिए अच्छे हैं, कुछ पोर्टल्स जो है वो मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छे हैं, कुछ हार्ट के लिए अच्छे हैं, और कुछ बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। राइट? तो जो अभी 8 पोर्टल है, इसे हम लॉइंस गेट पोर्टल बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल टू रिलीज एंड टू मैनिफेस्ट अबंडेंस। तो हम अभी वही करने वाले हैं। इस पोर्टल में जितना ज्यादा हम हील करेंगे, जितना ज्यादा हम रिलीज करेंगे, वो एम्पलीफाई होगा डबल स्पीड के साथ, और जो भी हम मैनिफेस्ट करेंगे वो भी एम्पलीफाई होगा डबल स्पीड के साथ। तो इसलिए पोर्टल्स में हमें थोड़ा खास ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो चीजें हम अनकॉन्शियसली सोचते हैं। मतलब कई बार हम तो गधेड़ा दिमाग है हमारा, हम यूजलेस चीजें सोचते रहते हैं ना बैठ के, तो हम भूल जाते हैं कि ये भी मैनिफेस्ट हो रही है फटाफट से। इसलिए हमें कॉन्शियस में रहना है और ऐसा कुछ भी नहीं सोचना जो नेगेटिव इन नेचर हो, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है, राइट? तो ये पोर्टल है 8 अगस्त तक है, उसके 3 दिन बाद भी रहेगा ये। इट विल गो अप टू 12 को, मतलब इट विल शट डाउन। तो अभी 8 तक जाते 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 इसकी एनर्जीज और हाई होने वाली हैं, राइट? तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं हम लोग, और जितना ज्यादा हो सके खुद को हील करें, हम मेडिटेट करें, हीलिंग करें। जिसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है वो बहुत किसी से भी हीलिंग ले सकते हैं, और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं गो फॉर मैनिफेस्टेशन, वो भी होगा, लेकिन अवेयरनेस में रहिए। टैग लाइन बी इन द अवेयरनेस, राइट? तो आई होप आपको समझ में आ गया, राइट? समझ में आ गया ना सबको? आ गया। वंडरफुल वंडरफुल। चलिए तो फिर हम आज की मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग एक बार अपना पानी पी लीजिए और आराम से बैठ जाइए मेडिटेशन पोजीशन में, राइट? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल डीप ब्रीदिंग के साथ। सब मेडिटेशन पोजीशन में बैठ के डीप ब्रीदिंग करें।
So breathe in through the nose and breathe out through the mouth. Breathe in through the nose and breathe out through the mouth. Very good. So ब्रीदिंग करते वक्त हमारा फोकस पूरा अपनी ब्रीदिंग पे रहेगा. We'll be focusing completely on our breath. Breathe in through the nose, breathe out through the mouth. Breathe in through the nose and breathe out through the mouth. पूनम, I will mute everybody. कुछ आवाज आ Just a रही है request. हाँ, mute. Please, yeah. तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना. मैं आपको Fine, no problems. हाँ. सॉरी टू इंटरप्ट, बट बीच में कुछ आवाज आ रही थी, मैं म्यूट करना भूल गई इनिशियली. ओके, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. जस्ट अ सेकंड, मुझे आप दिख नहीं रहे हो यहाँ पे. आप म्यूट पे हो. एक सेकंड, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ. अच्छा, आप हाई वाइब से हो. मैं आपको पूनम से ढूंढ रही हूँ. ओके, जस्ट अ सेकंड. अभी देखो, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? Yes. Okay. Yes. All right. Thank So, you. Okay. Meanwhile, आप सब लोग keep your focus entirely on your breathing and keep breathing. Keep breathing in through the nose and breathing out through the mouth. Keep your back straight. Keep breathing in through the nose and breathing out through the mouth. Now, as you breathe in the positivity, and as you breathe out all the negativity. Breathe in the positivity, breathe out the negativity. हर अंदर जाती सांस के साथ पॉजिटिविटी को अंदर लेके जाएं. हर बाहर जाती सांस के साथ अपने सभी थॉट्स, सभी फियर्स, वरीज, डाउट्स, सारी नेगेटिविटी को बाहर जाने दें. Keep breathing in the positivity and breathing out the negativity.
Now, I want you all to take your attention inwards. अपने ध्यान को भीतर की ओर लेकर जाएं. और देखें कि आपके सामने बादल का एक टुकड़ा है. There is a piece of cloud in front of you, and it is so beautiful. अब ये बादल आपको आज ब्रह्मांड की यात्रा कराने के लिए आया है. तो आप इस बादल पर जाकर बैठ जाइए. This cloud has come to take you for a tour of the universe. So go and sit on that cloud. अब ये क्लाउड धीरे धीरे ऊपर उड़ना शुरू हुआ आपको लेकर. जैसे जैसे ये क्लाउड ऊपर जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आप इस धरती से थोड़ा दूर और दूर और दूर जा रहे हैं. ऊंचा ऊंचा जा रहे हैं तो धरती आपको छोटी नजर आ रही है, लेकिन आप ऊपर से सब कुछ बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं. You are able to see everything so clearly, and it looks so beautiful from the top. इस यात्रा के दौरान आप इस सब को देखते और महसूस करते जा रहे हैं. You are feeling amazing. You are just mesmerized with the beauty. नीचे भी खूबसूरत धरती, ऊपर खूबसूरत आकाश, चारों तरफ इतना खूबसूरत नजारा. आप कब इतनी ऊपर आकाश में पहुंच गए कि आपको पता ही नहीं चला. अब ये बादल आपको एक ऐसी जगह पर लेके गया जहां पर आपने देखा कि आपके सामने एक एंजल है. There is a beautiful angel standing in front of you. आपने नोटिस किया कि इस एंजल के हाथ में 2 बॉक्सेस हैं. There are 2 boxes in the hands of that angel. अब आपसे एंजल ने कहा कि आप बड़े ध्यान से इसमें से एक बॉक्स को चूज कर लीजिए. तो अब आप बड़ी केयरफुली एक बॉक्स चूज कर रहे हैं. So choose one box out of those 2 boxes. अब जैसे ही आपने एक बॉक्स चूज किया तो एंजल ने आपसे कहा कि अब आप इसे खोल दीजिए. सो आपने उस बॉक्स को ओपन किया. As you open the box, आपने बीच में देखा कि ये बॉक्स तो खाली है. अब आपने एंजल की तरफ देखा
एंजल ने आपकी तरफ देख के मुस्कुराया और आपसे कहा, घबराओ नहीं, इस बक्से में आप अपने फियर्स, वरीज, डाउट्स, दुख, तकलीफ, एंजाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सभी नेगेटिव इमोशंस, वो सब कुछ जो आपको अपनी हाईएस्ट एंड बेस्ट लाइफ जीने से रोकता है, उस सब को एक एक करके निकाल के इस बॉक्स में डालते जाइए। सो आप कुछ भी फोर्स मत कीजिए, जो भी नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं उन्हें इस बॉक्स में डालते रहिए। अगर आपको रिलीज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप उसको डीप एक्सहेल के साथ रिलीज कर सकते हैं। जो भी इमोशन है उसे बाहर जाती हुई सांस के साथ रिलीज करें, ताकि वो सीधा जाके उस बॉक्स में गिर जाए। So release all that is stopping you from living your highest and best life. वो सब जो आपको आपकी हाईएस्ट एंड बेस्ट खूबसूरत लाइफ जीने से रोक रहा है, उस सब को आप इस बॉक्स में डाल दीजिए। Take your time. Put it all into that box. Beautiful. अब जैसे ही आप सब कुछ रिलीज कर चुके हैं, सब आपने उस बॉक्स में डाल दिया है, एंजल ने आपसे कहा कि इसे वापस बंद कर दीजिए और इसका ढक्कन इतना कस के लगाइए कि ये दोबारा खुल ना पाए। तो अब आपने उस बॉक्स को बहुत टाइटली बंद कर दिया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब आपको बहुत ही लाइट महसूस हो रहा है, आपको बहुत अच्छा, बहुत हल्का महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्मों से पड़ा हुआ कोई बोझ उतर गया हो। You are feeling amazing. और अब एंजल ने फिर से आपकी तरफ देखा, मुस्कुराया और आपसे कहा कि अब ये दूसरा बॉक्स भी खोल ही डालो। आपने वो दूसरा बॉक्स खोला और उस बॉक्स में आपने देखा कि 3 पिक्चर्स पड़ी हैं, 3 फोटोज हैं। आप एक एक करके उन्हें उठाकर देख रहे हैं। ये फोटोज तब की हैं जब
आपके साथ कुछ बहुत खूबसूरत घटा था, जब आप बहुत खुश थे, जब आपको लग रहा था कि आपने तो ये दुनिया ही जीत ली, इतने खुश थे आप। ये वो मोमेंट्स हैं तीनों में अलग अलग समय के अलग अलग मोमेंट्स हैं जब आप बहुत खुश थे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस इमोशन को डीपली महसूस करें और कुछ पल इसी एनर्जी के साथ रहें। जितना ज्यादा महसूस कर रहे हैं आप इस खुशी को, उतनी ही ज्यादा आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। तो फील कीजिए इसे डीपली। और अपनी वाइब्रेशन को हाईएस्ट लेवल पे ले जाइए। Stay with this emotion for some time. Feel it deeply. It is raising your vibration to the highest level. Beautiful. बहुत खूबसूरत। आपका रोम रोम खुशी से भर गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये पल तो मैंने बहुत समय से महसूस ही नहीं किए थे। कितने खूबसूरत थे वो पल, और कितना खूबसूरत है ये पल जिसमें आप उन पलों को एक बार फिर से जी रहे हैं। This is so beautiful. और आप बहुत ज्यादा हल्का और खुश महसूस कर रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो गई है। अब आप देखते हैं कि आप खुद में इतना खो गए थे कि एंजल अब वहां से जा चुका है, लेकिन आप बहुत खुश हैं, इसलिए आप अपने मन ही मन उस एंजल का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये अच्छी फीलिंग और अच्छी वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन लेके आप अब वापस आने का निश्चय करते हैं। तो वो बादल अब आपको धीरे धीरे वापस लेके आ रहा है। अब आप बहुत खुश मूड में हैं, और अब आपको आसपास की खूबसूरती 100 गुना ज्यादा सुंदर लग रही है, क्योंकि अब आप भीतर से खुश हैं। अब धीरे 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 उस बादल ने वापस लाके आपको वहीं पे छोड़ दिया जहां से वो आपको लेके गया था। आपने अपने दिल से उस बादल का धन्यवाद किया, उसका ग्रैटिट्यूड पे किया आपने। अब वो बादल वहां से चला गया। आप बहुत खुश हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को वापस प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आइए।
जहां पर भी आप बैठे हैं ये मेडिटेशन करने, उस कमरे में, उस जगह पर अपनी कॉन्शियसनेस को वापस लाइए। देखिए कि आपके आसपास क्या है, दीवारों का रंग कैसा है, आप कहाँ बैठे हुए हैं, महसूस कीजिए। और अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से अपनी बॉडी में लेकर आइए। बिकम फुली अवेयर ऑफ योर बॉडी, सिटिंग डाउन और लाइंग डाउन देयर। अब आप अपने पैरों को हिलाइए, थोड़ा थोड़ा अपने हाथों को हिलाइए, अपने कंधों को हिलाइए, अपनी गर्दन को हिलाइए। अब आप पूरी तरह से अपनी बॉडी के लिए अवेयर हैं। Your consciousness is fully back in your body. I want you to take a deep breath in through the nose. एक गहरी सांस लीजिए नाक से और गहरी सांस मुंह से वापस रिलीज कीजिए। अभी स्माइल कीजिए, अपने दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए, इन्हें अपनी आंखों पर रखिए। इसकी गर्माहट को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों को हटाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और यूनिवर्स को एक बड़ी सी स्माइल दीजिए, क्योंकि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत गहरे हील हुए हैं। यूनिवर्स का थैंक यू कीजिए, मदर अर्थ का थैंक यू कीजिए, अपना खुद का थैंक यू कीजिए और अपना पानी पीजिए एंड देन टॉक टू मी। मैं अपनी बात करूं तो मैंने कल ही एक यूनिकॉर्न शेप्ड क्लाउड देखा था। मैं अपनी बेटी के वाओ, साथ जा रही थी, उसको मैंने बोला भी देख यूनिकॉर्न क्लाउड करके। ओह वाओ, आसान था वो क्लाउड पे बैठ के जाना, घूमना। beautiful, that's so beautiful, very nice. Thank I you. hope you enjoyed the meditation, right? Yes, yes, very much. मजा ही आ गया. Wonderful, wonderful, wonderful. Okay, I'm allowing the participants to unmute themselves. You can also unmute yourself. आप अपने आप को भी अनम्यूट कर लीजिए. अभी ममता जी आप हेलो पूनम जी. Hello. Hello. Meditation was superb. Actually last में मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा हार्ट चक्र डेवलप हो रहा है बहुत ज्यादा. Very nice. Very nice, very nice. This is what we are actually trying to do, to open our hearts. जितना ज़्यादा होगा, because जितना ज़्यादा heart open होगा उतना ही हम receptive mode में आते हैं. We can receive abundance. If it is closed, तो कोई बाहर ये abundance लेके खड़ा भी है, but when your own heart is closed, वो आपके उसमें डाल ही नहीं सकता. You can't receive. It has to be open like this, right? So that's what we are trying to do. And if you felt like that, that's wonderful. Amazing, amazing experience. Thank you, thank you, thank you. Wonderful. Lots of love and light. पूनम जी. Yes, yes. पूनम जी, मैं ये बोल रही थी. एक के बाद एक, जिन्होंने हाथ रेंज किया ना, उस एक के बाद एक लेते हैं. मैं बोलूं अलिफिया, अंजलि? हाँ चलो बोल. जी जी जी. मैं ये बोल रही थी
कि आंख बंद करके इमेजिन करने से ज्यादा हमको बेटर आंख खोल करके लगता है। तो ये इज इट राइट? That's right, that's right. Actually मैं आपको क्लियर करती हूँ, जो कोई बताता नहीं है, there is no right way, there is no wrong way. It's your way, जो आपको सूट करता है, right? कुछ लोगों को आईज क्लोज करके अच्छे से विजुअलाइज होता है, कुछ लोगों को विजुअलाइज नहीं होता, they want to focus on one point, वो वहाँ खुली आंखों से देखते हैं. It's perfectly fine. आपका सिस्टम आपको जो कह रहा है, just go with that, because your body, your soul knows everything कि आपके लिए बेस्ट क्या है, right? बिकॉज इन ब्रह्मा कुमारी में जो मेडिटेशन होता है ना, तो वो आंख खोल के, तो वो मुझे प्रैक्टिस है, तो वो ज्यादा इजी हमको लगता है कि जैसे आपने जो बताया बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन वो आंख खोल के ही मैंने विजुअलाइज कर रहा था, इसीलिए पूछा कि आंख खोल के ही ना. That's perfectly fine, perfectly fine. Yes. Thank you. Lots of love and blessings. Thank you. Yes. Yes. और कौन? One by one. ममता जी बोलिए आप अपने आप को अनम्यूट करके. मैम थैंक यू फॉर द मेडिटेशन एंड क्लाउड्स का जर्नी तो बहुत सुपर रहा. एंड जब आपने कहा ऐसे 2 बॉक्सेस है यू हैव टू एम्प्टी, एक्चुअली थैंक्स टू अलीफिया मैम, एक बॉक्स ऑलरेडी मेरा काफी कुछ खाली कर दिया था मैंने, सो बाकी का भी जो था इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू एम्प्टी एवरीथिंग. एंड जब भरने की बारी आई एंड जब अपने आप को देखा उस लेवल पे, तो लाइक इट वाज ऑल क्लियर व्हाट आई वांट एक्चुअली, क्या क्या जो भरना है अपने दिल के अंदर. इट वाज ऑल वेरी वेरी अमेजिंग मैम. थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल मेडिटेशन. Awesome, that's wonderful. Lots of love and Thank you. blessings. Beautiful. Love you ma'am. Thank you ma'am. Lots of love. Thank you. मैम मैं तो ब्लैंक ही हो गई, मेरे को तीन आपने कहा सेकंड बॉक्स में 3 क्या, उसके बाद कुछ नहीं मालूम. कौन ब्लैंक हो गया था? मैं सुमन. अच्छा, ओ तो आपको कुछ विजुअलाइज नहीं आया? विजुअलाइज तो नहीं आया, उसके बाद भी जैसे मतलब इमेजिन कर रही थी, लेकिन जब 3 एक बॉक्स के बाद सेकंड बॉक्स में 3 क्या बोले, उसके बाद से मैं पूरी ब्लैंक हो गई. बाद में आया दिमाग, बाद में फिर लास्ट में सुनाई दिया कुछ. ओके, तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताती हूँ. एक्चुअली जो आजकल आप चल रहे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, राइट? या तो उस चक्कर में it happens because when your mind is stressed out, sorry मेरा फोन गिर गया, तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ये सब फेस करने में. विजुअलाइज करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू बी लिटिल पीसफुल हियर, राइट? तो अगर नहीं भी हो पाया दैट्स परफेक्टली फाइन. हाँ, लेकिन ऐसे सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, इफ यू कांट विजुअलाइज, तो आप सिर्फ अपने वर्ड्स या अपने थॉट्स के साथ, लाइक I'm putting my anger out and putting it in the box. I'm putting my frustration in the box. समझ रहे हैं? अगर आप visualize नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं, right? Okay. So that would be perfectly fine. और अगर आपको happy moments भी visualize नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, लेकिन याद कर लो mind में. You can go with thoughts and words की स्कूल में मैंने जब ये competition जीता तो मुझे लगा था कि अब इस दुनिया की राजकुमारी तो मैं ही हूँ, right? तो आप इस तरह से उसको करके, because ultimately what we are trying to do is to feel happy and to raise our vibration, right? तो ऐसे हम कर सकते हैं. And there is, as जैसे मैंने कहा कि there is no right or wrong way. तो अगर आप किसी भी तरीके से अपनी वाइब्रेशन को रेज कर पा रहे हैं, तो that's a wonderful thing to do. That's a wonderful thing, right? तो फिर एक बार ट्राई करूंगी. हाँ, आप इसको बाद में भी ट्राई कर सकते हैं. आपके लिए मैं इसको और थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन में बना के पोस्ट करती हूँ विद म्यूजिक एंड ऑल, ताकि आपका जो विजुअलाइजेशन है वो म्यूजिक के साथ कंबाइन होके थोड़ा और निखर के आएगा. ठीक है? I'll do that for you today. Thank you. Next time we can also put music here. Thank you very much. पूनम जी, मेरा फोन मुझे लग रहा है आपने आसमान बहुत की जल्दी यात्रा से इतना खुश है कि अभी वो बार बार नीचे गिर रहा है. पूनम जी, आपने बहुत जल्दी हमें उसमें से बाहर निकाल दिया, ऐसा लगा. मुझे लगा और कुछ देर वहीं रहना चाहिए था हमें. इतना अमेजिंग लग रहा था, अमेजिंग. थैंक यू सो मच. तो आपने क्या करना है, इसी फीलिंग को मतलब रखिए जितनी देर तक रख सकते हैं. स्टे विद दिस फीलिंग और
जब भी वही करेंगे, जब भी आपको लो फील होता है, सैड फील होता है, just place your hands on your heart and go back into that beautiful feeling. ठीक है? So this will help you in raising your vibration. Thank you so much. और नेक्स्ट टाइम फिर मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं लंबे समय तक वहीं पे बिठा के रखूं. Definitely. Yes. और कौन कुछ कहना चाहता है? Yes, ma'am, me, Pushpalata. जी जी, yes. Ma'am, actually what happened when you asked me to write on that cloud, and I just remember only that one, and then the rest, everything, I was totally sleeping. I feel so, but I know something might have gone. Actually, one of my manifestation, it was there. Even in the class itself, I told Mamda, our Mamda, that whatever you want, you just write. Like I told her, I'm unpacking my luggage in Chennai on 29th July. Till day before yesterday night, 10 o'clock, we have not booked the ticket, and now I'm sitting inside the hotel room of Chennai. So actually, Oh my God. today morning 3:30, I came from the Delhi, and we reached because we came for some conference. So I told my husband, no, let me just do this one, then we will go. So I was totally sleepy, and I know I just sat there, and then you told her, like, open your eyes. Only that one I have done. I missed everything. So, Wow, wow. That's so beautiful, wonderful. Amazing. Wonderful. Seriously, amazing. Very good. Like, this is the power of healing. When we start becoming conscious and we start healing ourselves, चाहे हम थोड़ा थोड़ा ही heal करना start करें ना, एक time पे it starts giving us big results. So it's beautiful, beautiful. Very nice. Lots of love and blessings to you. thank you, ma'am. और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं? जी सकीना, मैं बोलूं मैम? जी जी जी, सकीना जी, मैं एक्चुअली फोन पे हूँ ना, तो मुझे आपके सबके फोटोज ढूंढने पड़ते, वीडियोस, आप कहाँ पे हो? हाँ, यस, मिल गए आप. यस यस, प्लीज. जी मैम, मैंने आपको शवासन का बताया था ना, वैसा सेम मेरे साथ ये सेम इंसिडेंट एक्सपीरियंस मेडिटेशन में होता है. क्योंकि मुझे है ना लोअर बैक पेन इश्यूज है, तो मैं ना ज्यादा देर तक स्टेबल मोड में बैठ नहीं सकती. तो मैं ऑलवेज है ना शवासन ये प्रीफर करती हूँ कि मैं मूवमेंट ज्यादा फिजिकली ना करूँ. इसके लिए मैं शवासन है ना लाइंग डाउन पोजीशन में करती हूँ. शवासन क्या, मेडिटेशन लाइंग डाउन पोजीशन में करती हूँ, ताकि मुझे वो पेन में अपना ध्यान ना जाए मेरा. इसलिए मगर क्या होता है मैम कि एवरी टाइम कि जो मेन एसेंस होती है ना मेडिटेशन, उस टाइम में सो जाती हूँ. कोई भी टाइम में मेडिटेशन करूँ, जिस टाइम आपने वो वन बॉक्स कंप्लीट करवाया और दूसरा बॉक्स ओपन करवाया विजुअलाइजेशन वाला, उसी टाइम में सो गई, और वो बॉक्स का काम जब खत्म हुआ तब मैं उठी. ओके ओके, कोई बात नहीं. दैट्स ऑसम. मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है. ऐसा हमारा जब अनकॉन्शियस लेवल पे, जब हमारा सोल लेवल पे क्लियरेंस होती है, क्योंकि अभी कई बार हम खुद जोर लगाते हैं, बट एट टाइम्स लाइक वी बिकम सो रिलैक्स एंड आवर सोल सेज कि बॉडी को, माइंड को, भैया तुम रिलैक्स करो, नाउ इट्स माय जॉब. बिकॉज समटाइम्स सोल नोज कि मुझे क्या निकाल के फेंकना है, राइट? तो इसलिए सोल टेक्स ओवर. और मेडिटेशन में चाहे आपकी आंख भी लगी है, आप थॉटलेस पोजीशन में चले जाते हो उस टाइम, बट योर वर्क इज बीइंग कंटिन्यूअसली डन. ठीक है? तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि मैं सो गई थी तो शायद मैंने कुछ नहीं किया. नहीं, आपका वर्क डीपली हुआ है, इट्स डन, राइट? तो रिजल्ट्स आपको बड़ी जल्दी आपकी प्रेजेंट लाइफ में दिखने लगेंगे. सो इट्स ऑलवेज, वर्क इज ऑलवेज गोइंग ऑन, राइट? सो डोंट वरी अबाउट. आज तो मैंने क्या सोचा कि आज तो मैं बिल्कुल मुझे स्लीपी फील नहीं कर रही हूँ और मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, तो आज मेरा मेडिटेशन कंप्लीट होगा. मगर आज ही मुझे वो सेम एक्सपीरियंस हुआ कि मैं कुछ देर के लिए तो एवरी टाइम मेडिटेशन में सो ही जाती हूँ. मुझे भी नहीं मालूम ये मेरे साथ क्या होता है. नहीं, कोई बात नहीं. मे बी इट्स योर वर्क इज बीइंग डन ऑन अ डीपर लेवल. तो कोई बात नहीं, डोंट वरी. और जैसे जैसे ये वहां से क्लियर होता रहेगा, तब आप कॉन्शियस लेवल पे भी इसको करने लग जाओगे. अभी आपका सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पे चल रहा है,
and very soon it will be in your conscious level also. ठीक है, so don't worry. Meditation में बैठना ही खुद में एक बहुत बड़ी healing है, right? So it's इसका पहले already done. मेडिटेशन आपने जो करवाया था 2-3 दिन पहले, उसमें भी मेरे साथ सेम एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं कुछ देर के लिए सो गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, दोबारा बैठकर वो मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग अपने पास रखकर उसे यूज करके दोबारा वो मेडिटेशन किया फिर मैंने। ओके हाँ, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे, डोंट वरी। और वैसे भी जब हम लोग साथ में कलेक्टिवली करते हैं तो हमारी एनर्जी और वाइब्रेशन वैसी बहुत हाई हो जाती है, तो वो हमारी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती भी हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, क्योंकि जब हमारी वाइब्रेशन जितनी हाई होगी प्रॉब्लम्स उतनी कम होती जाती हैं, राइट? सो इट्स अ वंडरफुल थिंग कि हम लोग सब साथ में मिलकर करते हैं और आप सब अच्छा कर रहे हैं। एंड मुझे आपके उसमें आपके ऑरा में नजर आता है कि आप लोगों की कितनी हीलिंग हुई है, सो डोंट वरी, राइट? यस, थैंक यू मैम। रेनू जी ने हैंड रेज किया है, उनको आप अनम्यूट कीजिए रेनू जी, एंड देन निशा जी, देन भाविनी। थैंक यू वेरी मच। सुन रही है मेरी आवाज? यस 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 यस। हाँ, थैंक यू अलेफिया एंड पूनम जी। अब मैं जब मेडिटेशन करी ना, हाँ जब मेरे आपने मेडिटेशन करवाया ना, मेडिटेशन पे आपने बोला ना सारा नेगेटिविटी निकाल के दे देने के लिए, तो मेरे को बहुत पसीना आ गया, मेरा रीढ़ की हड्डी में बहुत पसीना आया मेरे। ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये एक्चुअली आपकी हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी होती है जो स्पाइन में होती है, तो आपकी वो एनर्जी एक्चुअली एनर्जी स्टार्टेड मूविंग, तो अच्छी बात है कि आपकी क्लींजिंग स्टार्ट हुई है, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू, सॉरी दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो ये अच्छी चीज है, ये आपके साथ अच्छा हुआ है, बिकॉज इट वाज योर हीलिंग दैट वाज टेकिंग प्लेस, राइट? तो वो आपके अंदर से नेगेटिविटी एक्चुअल में निकल रही थी आपके एनर्जी फील्ड में से। गॉट इट? सो आई शुड आई कंटिन्यू द सेम थिंग? क्या मैं वापस कंटिन्यू करूं? यू कैन ट्राई इट। हाँ हाँ, आप कीजिए इसको, इट इज अ वंडरफुल थिंग टू डू, है ना? यस, आपकी अच्छे से और क्लींजिंग हो जाएगी। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बोलूंगी कि कुछ भी हमें ओवरडू नहीं करना है, बिकॉज समटाइम्स दीज एनर्जीज आर सो पावरफुल, और हमारी बॉडी की लिमिट्स होती हैं, राइट? तो हमारी बॉडी एट टाइम्स उसको ले नहीं पाती है ठीक से। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें इसको उतना ही करना है जितना कि पहले हमारी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। बिकॉज अब अगर मेरी कुंडलिनी पूरी राइज हुई थी, तो उससे पहले मैं एक पूरे प्रोसेस से गुजरी थी, जिसमें टाइम टू टाइम माय डिवाइन वाज प्रिपेयरिंग माय बॉडी टू होल्ड दैट एनर्जी इनसाइड, ठीक है ना? अगर वो प्रिपरेशन नहीं होती तो शायद आज मैं भी कहीं पे और पे पड़ी होती, राइट? गॉट इट? सो इसलिए वी डोंट फोर्स एनीथिंग एंड वी डोंट ओवरडू एनीथिंग। तो आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे कीजिए, दैट वुड बी फाइन, क्योंकि आप फिर एकदम से वो एनर्जी को एकदम से नहीं हिलाएंगे। सो डू इट ऑल्टरनेट डेज, राइट? ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू। यस, निशा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए या शेयर कीजिए। and we have only 5 minutes because then I have to rush somewhere, तो आप फटाफट से मेरे को अपना शेयर कीजिए सभी। आई थिंक वंदना जी भी कुछ बोलना चाहते थे बीच में। वंदना जी, आप अपने आप कर लो। 2 लोग ने हैंड रेज किया है, आई थिंक, है ना? हाँ, निशा जी पता नहीं चले गए शायद। ओके, should I share? भाविनी has also raised hand. हाँ, आप बताइए कौन? Yes, please. Should I speak, Alicia? Yes, भाविनी, yes. Speak please. मुझे आपका पता नहीं। हाँ, So बोलिए। no problem. So when you asked to climb on the saddle, the cloud, तो मैंने तो पूरा ऐसा सैडल था वो क्लाउड का, ऐसा बहुत जबरदस्त मेरा सवारी था। मैंने मेरा कॉस्ट्यूम भी चूज कर लिया है, मेरा फेवरेट ड्रेस है, तो ये पहन के मैं क्लाउड पे गई ऊपर, एंड फिर वो जो सब डालना था वो सब डाला। फिर आपने बोला कि उसको साइड बंद करो, तो मैंने सोचा कि
अच्छा टाइट बंद किया करना है, लेकिन इसने तो बोला नहीं कि उसको एकदम ताला मार के कुछ ऐसे रखो, तो मैंने खुद ही ताला मार दिया और ऊपर यूनिवर्स से मैंने उसका चाबी पूरा वो इंडियन ओशन में फेंक दिया, अरेबियन सी में, कि ताकि वो कभी खुले ही नहीं, वो मेरा नेगेटिविटी का ताला। वाओ, उसके बाद में आपने कुछ बोला, वो एंजल के पास दूसरा बॉक्स है, उसमें कुछ 3 चीजें, तो वहां तक मैं बराबर कॉन्शियस थी। फिर क्या हुआ, 1-2 सेकंड के लिए मेरी आंख लग गई, आई वाज इन अ डीप ट्रांस, and then I understood that you said about the feelings, so then I recollected those 3 best feelings, and that time तो मेरे इससे आंसू निकल रहे हैं, मैं इतना रो रही हूँ खुशी के मारे, मतलब ऐसे आंसू मेरे हार्डली कभी निकले खुशी के मारे, तो I was feeling like so much joyful and जबरदस्त, एकदम मजा आ गया, so thank you so much. ब्यूटीफुल, ऑसम ऑसम, आई एम सो हैप्पी कि आप सब लोग बहुत अच्छे से हील कर रहे हो, सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। और कौन बोलना चाहते हैं? मैम मैं बोलूं, ऑडिबल हूं मैं? हाँ आप ऑडिबल हैं, कौन बोल रहे हैं? बोलिए। निशा बोल रही हूँ। ओके ओके, हाँ बोलिए निशा, बोलिए। मैम वो मुझे मतलब इजीली विजुअलाइज हुआ मैम, वो बॉक्सेस में वो नेगेटिविटी डालना बंद करना है, फिर पॉजिटिविटी का बोला था, फिर पता नहीं क्या हुआ, तो उसके बाद मुझे कुछ बराबर से याद नहीं है मैम, तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे होता है तो हाँ कोई बात नहीं, दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि देयर इज नो रॉन्ग और राइट वे, देयर इज जस्ट अ वे, राइट? So you coming and sitting with everyone in the meditation is a big thing for healing, क्योंकि यहाँ पे आपको हम सबकी वाइब्रेशन बराबर मिल रही थी, राइट? तो वो ऑटोमेटिकली सबका काम जल्दी जल्दी से होता है, फास्ट। So don't worry, you have done a wonderful job. Say hi to everybody now. Come, say hi to everybody. Say hi. Hi. She's so adorable. she's so excited, no? So she's trying to peep in कि क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं देखूं कौन कौन है। शर्मा तो चली गई वापस। Yes. अभी actually I have to go to drop them to tuition. It's their time. So she's sitting by my side ताकि मम्मी पे प्रेशर बना रहे ना कि मम्मी फटाफट उठेंगी। ऐसे ही करते हैं बच्चे। Yes. So I think सबका everybody is done for today, right? Yes, I guess everybody is done. Wind up करते हैं, and I really bless you all with lots of healing, lots of love, light, peace, and your manifestations बहुत जल्दी से सब पूरी हो जाए। Thank you very much. Thank you. Blessings and love to all. Thank you, and wish you the same. It's an amazing afternoon for us. Thank you. Thank you, Poonam. Love you, sister. Thank you, Poonam ji. Thank you, everybody. Thank Thank you you all. Lots of Love you blessings all. you all. I love you All light in abundance. and everyone. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Poonam ji. Thank you, Alifia ji. Thank you. Thank you. अभी अलीफिया आप बंद कर दीजिए। हाँ जी।